Good morning, students. How are you? I welcome you in our computer class of chapter number 3 Animate Layers and Animation. Are you ready with your notebook, pen, or pencil? If yes, let's start with the class. In our previous videos of chapter number 3, I have explained you what is Animate, graphics in Animate, working with layers, symbols and instances, and animation in Animate. Do you know what is animation? Animation is just only a special effects which is attached with the static states or symbols. Suppose when you see a cartoon movie, the cartoons are playing the roles like human beings. These movements of these static states are known as animation. I explained this animation in a previous video in very details. Now we are continuing our chapter, that is frames in Animate. As you know, a frame is used to add some movement. You can add frames and keyframes to our Animate movie. A frame is the empty frame along with the timeline. A keyframe is the frame which has an animation in it or where a new symbol appears in the timeline. It is used for critical points in the timeline where your content changes. Keyframes are also used to mark the beginning or end of an animation. You can add or remove frames to adjust timing between keyframes. A keyframe is indicated on the timeline with a black circle. A frame where a keyframe span ends has a white rectangle. When you insert an object in that keyframe, the black circle changes to black dot. The frames between the two black dots becomes light gray. You can add a blank frame to the timeline as a placeholder for symbols you plan to add later or to clearly leave the frame blank. The blank frame is indicated by a black circle. A blank keyframe is exactly the same as a regular keyframe. The only difference is that Animate automatically removes all of our content from the stage at a blank keyframe. That way, if you want to start fresh at a certain point on the timeline, we do not have to manually delete objects from the stage. तो इसके अंदर जो है अब फ्रेम्स क्या होते हैं? Frames are very small piece of time, and these are basically used when we want to give animation to our objects or symbols. जो हमारा एक फ्रेम होता है वो एक छोटा सा टाइम अलॉटेड होता है उसको, और ये जो है आपकी जो टाइम लाइन है इसके ऊपर डिस्प्ले किया जाता है. सेकंड आता है अ की फ्रेम. की फ्रेम क्या है? की फ्रेम जो है वो आपका एक स्पेशल फ्रेम है जिसके अंदर जो है आप लोग अपने ऑब्जेक्ट्स का जो मूवमेंट है, फिर जो भी आप लोग उस ऑब्जेक्ट से मूवमेंट करवाना चाहते हैं वो उसको इंडिकेट करता है. मीन्स कितने टाइम के अंदर कहाँ से किस तरह का मूवमेंट आप लोगों ने देना है वो आपका की फ्रेम के अंदर आता है. ये की फ्रेम जो है हमारे एनिमेशन की बिगिनिंग और एंड को मार्क करने के लिए भी यूज हो सकता है. जो हमारा की फ्रेम है वो एक ब्लैक सर्कल के द्वारा टाइम लाइन के ऊपर दर्शाया जाता है. इसका जो की फ्रेम है इट इज
स्पैन्स एंड विद द वाइट ट्रायंगल। जो हमारा की फ्रेम है इसकी जो एंडिंग होती है उसके अंदर जो है वाइट कलर का रेक्टेंगल होता है, वो ये दर्शाता है कि जो हमारा की फ्रेम हमने ऐड किया था वो जो है हमारा उसका जो टाइम है वो ओवर हो चुका है। और जो की फ्रेम्स, दो की फ्रेम्स के बीच में टू ब्लैक डॉट्स बिकम ग्रे मीन्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे दो फ्रेम्स के बीच में ब्लैक डॉट्स जिसके द्वारा हमारा की फ्रेम दर्शाया जाता है, जो जो प्ले हो जाते हैं वो लाइट ग्रे कलर के हो जाते हैं। इट मीन्स दैट सीम्स दैट दे हैव जस्ट ओवर और दे हैव जस्ट डीएक्टिवेटेड। अनदर टाइप ऑफ फ्रेम इज दैट ब्लैंक की फ्रेम। ब्लैंक की फ्रेम क्या होता है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं एक एज अ प्लेस होल्डर। मीन इसके अंदर हमने कोई भी कमेंट डालना है वो डाल सकते हैं, और ये जो है हमारा एक ब्लैक सर्कल के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। और डिफरेंस क्या है, जो आपका रेगुलर फ्रेम है और ब्लैंक की फ्रेम है, इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं होता। ब्लैंक की फ्रेम का मतलब क्या है कि हमारा जो भी फ्रेम आएगा बिल्कुल ब्लैंक होगा, उसके पीछे से जो है जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो उनको ऑटोमेटिकली जो है वो रिमूव कर देगा। उसको जो है हमें मैनुअली रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज करिए आपने कोई वीडियो प्ले करनी है, मूवी को छोटी सी बनानी है, उसके अंदर आप लोगों ने जब आपकी एक फ्रेम का एंड हो गया और आप लोग जो है उसके अंदर सेकंड टाइप की वीडियो प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आप लोगों को कुछ देर के लिए स्क्रीन ब्लैंक चाहिए, या तो आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। अगर आपने ब्लैंक की फ्रेम डाल दिया तो वो ऑटोमेटिकली जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनको टेम्परेरीली जो है हाइड कर देगा, रिमूव कर देगा, और आपको उनको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन इज नोन एज स्टॉप मोशन एनिमेशन. It is achieved by manipulating a physical object and marking it appear to move on its own by soothing one frame, manipulating the object, then shooting another frame, and so on. You can create illusion of movement in a movie by changing the placement of the stage content from keyframe to keyframe. This animation is called frame by frame animation. फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन का मतलब क्या है? ये जो हमारा फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन है ये हमारा स्टॉप मोशन एनिमेशन भी कहलाता है। क्यों कहलाता है ऐसा? क्योंकि जब हमने किसी भी एक फ्रेम को जो एनिमेशन देना है, जो उसे वर्क करवाना है, जो भी उससे एक्टिविटी करवानी है अपने ऑब्जेक्ट से, उसको जो है हम अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं फ्रेम्स के थ्रू। As you know very well, the frame is a small piece of time. जो हमारा पीस ऑफ जो टाइम है उसके अंदर जो हमारा प्ले होगा फ्रेम, उसके अंदर जो है जो भी आपने एक्शन परफॉर्म करना है वो कर सकते हैं हम। इसके अंदर क्या होगा, जो स्टेज के ऊपर जो हमारे डिफरेंट स्टेज के ऊपर डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स की चेंजिंग होगी वो फ्रेम बाय फ्रेम होगी। मीन्स एक फ्रेम कवर हुआ, नेक्स्ट वाला आ जाएगा, वो अपना एक्शन करेगा, थर्ड वाला आ जाएगा, थर्ड अपना एक्शन करेगा, नेक्स्ट वाला आ जाएगा। ये हमारा होता है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। मीन्स हम इंडिविजुअल फ्रेम्स को जो है एनिमेट करते हैं इसके अंदर। नाउ इट कम्स ट्विनिंग। ट्विनिंग का मतलब क्या है? ट्विनिंग मीन्स इन बिटवीन, मीन्स बिटवीन द टू फ्रेम्स, भी दो एनिमेशंस के बीच में क्या हो। मीन्स यू कैन अप्लाई ट्विन व्हेन यू एनिमेट मूवी सिंबल्स. A twin defines 2 points of the movement in the timeline with 2 keyframes. It lets animate calculate all the in-between frame necessary to get from first point to the last point. The difference between frame by frame animation and twin is that when you create frame by frame animation, you manually input the changes made to each frame in the sequence, and when you use twin, you only specify the first frame and the last frame and let animate calculate in between frames. In animate, we have 3 types of animations. ट्विनिंग क्या है?
ट्विनिंग हमारा वो है जिसके अंदर हमें जो है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट्स अपने फ्रेम्स का बताना होता है। बाकी का एक्शन जो है वो आपका ट्विनिंग करती है। ट्विनिंग का मतलब अभी मैंने आपको बताया इन बिटवीन। इन बिटवीन क्या है, जो भी हमारा हमने स्टार्टिंग बता दी और एंडिंग बता दी, उसके बीच में जो मूवमेंट है वो ऑटोमेटिकली आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ही करेगा। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन और ट्विनिंग के अंदर। जो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन है उसके अंदर हमें मैन्युअली जो है अपने फ्रेम्स के एनिमेशन सेट करने पड़ते हैं, उनको चेंजेस करना पड़ता है फ्रेम बाय फ्रेम। पर ट्विनिंग के अंदर जो है जो हमें स्टार्टिंग फ्रेम, की फ्रेम और लास्ट जो की फ्रेम है उसके बारे में बताना है। उसके अंदर जो भी फ्रेम्स की चेंजिंग होगी हम उसको जो है ट्विनिंग के अंदर एक बार लोड कर देंगे और ट्विनिंग के द्वारा जो है हमारा चेंजेस उसके अंदर ऑटोमेटिकली होती रहेंगी। हमें उसकी जो है मैनुअल इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। ट्विनिंग इज ऑफ 3 टाइप्स। जो हमारी ट्विनिंग है वो 3 तरह की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिकल ट्विनिंग, सेकेंड मोशन ट्विनिंग एंड थर्ड इज द शेप ट्विनिंग। द क्लासिकल ट्विनिंग, we can use the classic twin between 2 की frames। जो हमारी क्लासिक ट्विनिंग है उसको हम जो है 2 फ्रेम्स के बीच में यूज कर सकते हैं। देन मोशन ट्विन, as its name suggests you, a motion twin is a feature that allows you to easily animate the motion of an object. Instead of defining the location of the object in every frame, you can create a motion twin which will automatically move the object from the beginning location to ending location. Once the twin has been created, you can click on any frame within the motion twin and move or rotate the object. Animate automatically builds a motion path animating the frames between the first frame and the next frame. In order to animate to create the motion twin, you may need to convert the object to a symbol. ये क्या कहता है हमें, जो मोशन ट्विन जो है वो एक ऐसा फीचर है जिसके अंदर जो है हमें इनकी लोकेशंस, जो हमारे फ्रेम्स हैं उनके ऑब्जेक्ट्स की लोकेशन डिफाइन करनी होती है कि एक ऑब्जेक्ट को किस लोकेशन से, मीन्स किस प्लेस से किस प्लेस तक मूव करना है। तो मोशन का मतलब क्या है, जो भी हमने मूवमेंट देना है ऑब्जेक्ट्स को कैसे देना है। सपोज करिए जब हमारे कार्टून्स हमें प्ले करते हैं, कभी वो जंप करते हैं, कभी वो दौड़ते हैं, कभी स्लो चलते हैं, कभी दाएं चलते हैं, कभी बाएं चलते हैं, ये उनके मोशंस कहलाते हैं। मीन्स किस तरह से इनको मूव करवाना है, किस डायरेक्शन में कहाँ पर जंप करवाना है, उसको जो है हम मोशन ट्विनिंग के थ्रू इजीली कर सकते हैं। हमने जो है उनके मूवमेंट को गाइड करना है, किस तरह से वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाएं, किस स्पीड पर जाएं, ऑल वी कैन डिफाइन इन थ्रू द मोशन ट्विन ऑटोमेटिकली। इसमें जो है हमें ह्यूमन बींग्स के इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। उसके अंदर जो है हम जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जो है हमें उनका जो मोशन है, मूवमेंट है, वो जो है उसको गाइड करने के अंदर वेरी हेल्पफुल होते हैं। बट इट हैज़ वन कंडीशन, जब भी हमने मोशन ट्विनिंग के अंदर कोई एनिमेट क्रिएट करना है, एनिमेशन बनाना है, उसके लिए पहले हमें जो अपना ऑब्जेक्ट है उसको एक सिंबल डिफाइन करना होगा, उसको एक सिंबल के अंदर कन्वर्ट करना होगा। नेक्स्ट आती है शेप ट्विनिंग। यू कैन यूज शेप ट्विनिंग टू मॉर्फ वन शेप टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन मॉर्फ अ सर्कल इनटू स्क्वायर। शेप ट्विन्स कैन ओनली बी अप्लाइड टू शेप्स। अब शेप ट्विनिंग का मतलब क्या है? शेप मीन्स whatever the shapes like circle, square, rectangle, these are the shapes drawn by you। अगर जो है इन शेप्स को जो है आप लोग एक शेप से दूसरी शेप के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं, मॉर्फ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म।
ट्रांसफॉर्म मीन्स सपोज करिए आपने सर्कल है, सर्कल को आपने स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, या स्क्वायर को सर्कल में करना है, या सर्कल को रेक्टेंगल में करना है। दिस इज नोन एज मॉर्फिंग। तो शेप ट्विन के अंदर जो हम शेप्स बनाते हैं, इनको जो क्या मूवमेंट देना या इनको ट्रांसफॉर्म करना। कई बार आप लोगों को क्या लगता है, जब कोई आप कार्टून मूवी या एनिमेटेड मूवी आप लोग देखते हैं, उसके अंदर एक शेप जो है दूसरी शेप में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो है हमारा होता है शेप ट्विनिंग के द्वारा, एक शेप को दूसरे में कन्वर्ट कर देते हैं। द शेप ट्विनिंग ओनली वर्क्स ऑन द शेप्स। जो हमारी शेप्स होती हैं, शेप ट्विनिंग हमारी जो है सिर्फ उसी के ऊपर वर्क करती है, ये हमारे सिंबल्स और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है ये काम नहीं करती। तो नाउ द चैप्टर इज ओवर, नाउ वी आर कमिंग टू इट्स एक्सरसाइज पार्ट। This part is the self-evaluation which you are to mark on the basis of your understanding of your chapter. You are to tell, are you agree or disagree from these points. Then it comes the multiple choice question MCQs. In this part, you are only to mark the correct option. You have 6 multiple choice questions which you are to mark on your book only. Then it comes true false. You have 5 true false statements. You are to mention either true or false in the given boxes. Then it comes fill in the blanks. The part C contains fill-ups. You have 5 fill-ups and in which you are to give their answers or write them on their book only. Means part A, B and C. You will do it in your book. After this exercise work, part A, B, C, then it comes part E. Answer in one or two sentences. These are the question answers E and F. What is animation? Why do we need frame in animate? How can we slow down the animation? These are the short question answers. Then answer briefly. These you have 2 questions. What is frame by frame animation? Explain. What is the twinning? Write its types. It is the exercise work which you are to do. After this, then it comes the answer keys for it. Now you have the answers of your parts. A part, correct answer the correct option. B contains true false. C contains fill in the blanks. Then D contains the differentiate between the following. E part contains answer in 1 or 2 sentences. It comes answer briefly. The question number 1, its answer is there. Then the answer number 2 is there. And the G part contains the application based question. The application based question, you will write the answer of this question in the book only. Now I'm repeating you again. You will write question number A, part number B, C. These are the exercise work which you will do only in the book. Then differentiate between answer in 1 or 2 sentences and answer briefly. You will write them in the notebook. Now question G, application based questions, you will write them in the book only. This was the chapter number 3. It is over now. Okay, goodbye. See you once again.